डेली वर्क। और सबको इतना क्लियर हो गया? सबको यहाँ पे क्लियर हो गया रोबोटिक्स रोबोटिक्स? यस। ओके, मूविंग ऑन। Moving on, what is Arduino Uno board? The Arduino Uno board is a small, inexpensive computer that can be programmed to control uh, endless creation, endless creation limited only by your imagination. Arduino Uno board जो है वो small, छोटा, एक्सपेंसिव होता है, कंप्यूटर है दैट कैन बी प्रोग्राम, जो कि आपके कमांड के ऊपर प्रोग्राम हो सकता है। और जो है वो है एंडलेस क्रिएशन, आप खुद जो चाहे आप बना सकते हैं ऑन योर ओन इमेजिनेशन। Arduino Uno board can be used to make a whole host of projects like Arduino Uno जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए काम आ सकते हैं, जैसे कि घोस्ट डिटेक्टर, जॉयस्टिक कंट्रोल, लेजर, सोनार, अल्ट्रासोनिक, हम सिक्योरिटी सिस्टम, लेजर ट्रिप वायर अलार्म, मोशन सेंसर अलार्म, कीपर एंट्री सिस्टम एंड मैनी अदर्स। Now, all of these projects are easy to build. They are very easy to build and they have one thing in common, which is Arduino Uno board. सबको क्लियर हो गया कि Arduino board, Uno board क्या है? जी सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। These are the components of Arduino Uno. Arduino Uno. The first one is the reset button. In simple words, reset button resets the whole your program. And we have another component of 14 digital in-out pins, which we will use in our project. And, and these are the digital pins. The third one is these TX and RX LED pins, which transmits when the data is transmitting or receiving from an Arduino board, the TX and RX LED pins lights up. The fourth component is a USB socket, which is used to connect an external source, a laptop or any device to an Arduino board. These are the fifth component. The fifth component is the fifth component is Atmega A3288P microcontroller, which is used, which the whole your program is stored in here, in this microcontroller. The sixth component is the power pins, in which all the power pins are here over there. You can use to power the breadboard and other boards. The seventh is the six analog in pins, और ये पिन जो है आपको आपका एनालॉग आप पिन लगा सकते हैं। सिक्स एनालॉग पिन होती हैं, A0, A1, A2 एंड A3, A4, A5। अब हम अपने एट कंपोनेंट के ऊपर आते हैं, विच इज पावर सॉकेट 2.1 mm बैरल टिप 9 वोल्ट। यहाँ पे जो है हम लोग अपनी आर्डिनो उनो को एक 9 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में हमारे पास आ जाता है एक ICSP हेडर, जो कि अपने माइक्रो कंट्रोलर को अलाउ करता है प्रोग्राम रन करने के लिए। सबको आर्डिनो उनो बोर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में समझ में आ गया? यस। ठीक है, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन, ब्रेडबोर्ड। A breadboard is actually a device, is a component which can be used to is a construction acts as a construction base for your electronics prototyping. You can build your circuits over here. Previously, the boards like Vero board have used to have they were not soldered, so you have to solder them. But breadboard is easy to use, as it is already soldered, and you have to just plug in the pin from your LEDs or another component. The upper two rows are the power pins of the breadboard, इस पे जो है आप पावर दे सकते हैं। और अपर टू रोज, और ये जो है हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होती हैं दूसरों से। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पोर्शन पे, जो कि है बीच वाला। ये जो पोर्शन होता है, इधर हम अपना मेन काम करते हैं, अपना सर्किट बिल्ड करते हैं। ये जो है वर्टिकली, दीज आर कनेक्टेड वर्टिकली। ठीक है,
और बीच में देखें आप, इधर ब्रेस होते हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए आपको उधर पावर पिन से अपनी उधर वायरिंग देनी पड़ती है उधर। ओके, सबको क्लियर है प्रिंटड? Yes. Yes. आगे बढ़े। वॉकवी, हम अपना सर्किट जो है वो वॉकवी पे बनाएंगे। वॉकवी इज एन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर, ठीक है। यू कैन यूज इट टू सिमुलेट आर्डिनो ESP32 एंड STM32 एंड मेनी अदर पॉपुलर बोर्ड्स, पार्ट्स एंड सेंसर। हम वॉकवी को आप खोलेंगे कैसे? वॉकवी, यू कैन गो टू गूगल एंड सर्च वॉकवी and walk, then you can go to electrical component toolbox, find Arduino Uno, drag and drop Arduino Uno onto the screen, and then will have a screen. I'm going to show you right now. Project 2, bar graph. In this project you will combine, अब हम बार ग्राफ बनाने वाले हैं, जैसे जो है हमने पिछले अपना प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें जो हमने एलईडी को अपने पुश बटन के साथ इस्तेमाल किया था। अब हम एक बार एलईडी प्रोजेक्ट 2 बनाने वाले हैं जिसका नाम बार ग्राफ है, जिसमें जो है हम लोग पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। पोटेंशियोमीटर जो है वो नया कंपोनेंट है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सबको ये प्रोजेक्ट क्लियर है? ये अपना प्रोजेक्ट नंबर 2, Yes. ठीक है। The parts required for our project is Arduino Uno board, breadboard, jumper wires, 9 LEDs, 50k ohm potentiometer, and 9 220 ohms resistors. Moving on, सर this 50 k ओम पोटेंशियोमीटर का क्या है? 50 ओम ऐसे कि इसमें रेजिस्टेंस है, जो करंट अपना जो आ रहा है वो उसे कंज्यूम कर लेता है अपने अंदर, मतलब इसमें 50 के इसका रेजिस्टेंस है। सही है। सर ये पिक्चर में कौन सी चीज है? पिक्चर में एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो ये वाला बोर्ड है, ये आर्डिनो उनो बोर्ड है हमारा। दिस इज पोटेंशियोमीटर, दिस इज योर पोटेंशियोमीटर, दिस इज योर रेजिस्टर्स, दीज आर योर रेजिस्टर्स। ये आपके रेजिस्टर्स हैं, और ये जो है अपनी 9 एलईडीज हैं विच वी नीड फॉर प्रोजेक्ट नंबर 2। क्लियर है आपको? जी सर, थैंक यू। ठीक है। मूविंग ऑन, दिस इज आवर सर्किट। हम सबको सर्किट बनाना पड़ेगा, हम सब साथ मिलके बनाएंगे एज अ क्लास। ओके, तो सब जो है गूगल पे जाके वॉकवी सर्च करें, और वॉकवी पे खोल के हम लोग साथ सर्किट बनाते हैं। ओके, आप सब सर्च करें वॉकवी को, तो वॉकवी ऐसे खुल आपको खुल जाएगा, और कुछ ऐसा आपके पास आएगा। ओके, Yes. Okay. यहाँ पर पहुंच गए? Yes. सब पहुंच गए यहाँ पर? मुसब, आमना? Yes. अब हम पहले जो है वो सामान निकाल लेते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है, विच आर पोटेंशियोमीटर, 9 रेजिस्टर्स, 9 LEDs,
एंड दैट्स इट। सब ये चीजें निकाल लें कंपोनेंट्स अपने, और ब्रेड बोर्ड, वी नीड अ ब्रेड बोर्ड। सर आवाज आ रही है अब। मैंने जो है यहाँ पर 9 LEDs निकालनी है, सब अपने उसके ऊपर 9 LEDs निकाल लें। ये इसमें कहाँ सर बनी? थोड़ा आहिस्ता चलें, हम भी साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा, सब यहाँ पर पहुंचे फिर मुझे बताइएगा। सब यहाँ तक पहुंच गए? जी पहुंच गए। एवं, ठीक है। अब हम अपने रजिस्टर्स निकालेंगे, इससे निकालते हैं। ये भी सब निकालने हैं रजिस्टर्स। सबने रजिस्टर्स निकाल लिए? जी निकाल लिए। ठीक है, मूविंग ऑन। अब हमें पोटेंशियोमीटर निकालना है, तो हम पोटेंशियोमीटर को जो है सर्च कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखेंगे पोटेंशियोमीटर आ गया है। हमें ये वाला ऊपर वाला सबसे फर्स्ट वाला पोटेंशियोमीटर चाहिए। सर मैं अक्सर चीजें रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर अलग अलग और भी चीजें, दूसरी चीजें आई हुई। अगर आपको उसको डिलीट करना है तो आप उसके ऊपर क्लिक करें ऐसे करके, और उसके ऊपर बैक स्पेस दबा दें, या डिलीट का ऑप्शन बटन दबा दें, ये डिलीट हो जाएगा।
सबने पोटेंशियोमीटर निकाल लिया? जी निकाल लिया। ठीक है, अब हम अपना फाइनल कंपोनेंट ब्रेडबोर्ड निकालेंगे, फुल ब्रेडबोर्ड। ठीक है, जब आप ब्रेडबोर्ड सर्च करते हैं तो यहाँ पर एक फुल होता है, एक हाफ होता है और एक मिनी होता है। हमें फुल वाला ब्रेडबोर्ड निकालना है और इसको हम ड्रैग करते हुए नीचे ले आएंगे आर्डिनो उनो के साथ। सबने निकाल लिया? जी निकाल लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो हमारे पास अब हमें क्या करना है कि एक एलईडी को ड्रैग करते हुए ब्रेडबोर्ड के ऊपर लाना है। ठीक है, और इसको जो है रजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है। रजिस्टर की जो अपनी जो एलईडी की जो पॉजिटिव लेग है, एनोड लेग है, उसको हमने अपने रजिस्टर की वन लेग के साथ कनेक्ट करना है। सर हम रजिस्टर की ओम्स डिटरमाइन नहीं करेंगे क्योंकि जो है वो जो आपने प्रेजेंटेशन दिखाया था उसमें ओम्स डिटरमाइंड थे। डिटरमाइंड मतलब, अच्छा, असल में हम रजिस्टर्स के किसी भी इसके ले लें, भी हम डिजिटली कर रहे हैं तो वो अपना काम हो जाता है उससे वैसे। इधर जी सर देखें। मोबाइल में दिख रहा है जी, ये जैसे आया ना अभी, हम्म। वो दिख रहा है उसमें। ठीक है, अच्छा, अब हम सब इन एलईडीज को, अब हम अपनी फर्स्ट एलईडी को देख रहे होंगे आप। हमारी जो रजिस्टर की जो वन लेग है, इट इज कनेक्टेड टू द एनोड पिन ऑफ आवर एलईडी। अब हम अपनी रजिस्टर की सेकंड लेग जो है उसको कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 2 से, आर्डिनो उनो के डिजिटल पिन। सब यहाँ तक पहुंच गए? जी। ठीक है, अब हम अपनी दूसरी एलईडी जैसे कनेक्ट करेंगे अपने रजिस्टर के साथ और उसको पिन नंबर 3 से कनेक्ट करेंगे डिजिटल आर्डिनो उनो की। ओके, सब मेरे साथ करते हैं, कोई पीछे ना रहे। अब हम जितनी भी एलईडीज कनेक्ट करेंगे उन सबको हम लोग ऐसे लाइन वाइज लेकर जाते रहेंगे जब तक वो 10 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट एलईडी को सेकंड एलईडी को कनेक्ट किया है, ऐसे हम अपनी थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और सो ऑन, जब तक हमारी एलईडी कनेक्ट करनी है हम उस तक उसको कनेक्ट करते रहेंगे कनेक्ट। अच्छा, किसने ये जो है टू एलईडीज जो है कनेक्ट कर दिए अपनी डिजिटल पिन से? मैंने कर लिया। ओके,
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अपने थर्ड एलईडी को हम कनेक्ट करते हैं फोर्थ पिन से। आर्डिनो में डिजिटल पिन 4 से कनेक्ट करते हैं। अब हम ऐसे अपनी फिफ्थ एलईडी फोर्थ एलईडी को भी कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ तक पहुँच गए। यस। हम इसको पिन नंबर 5 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पिन नंबर 5 को कनेक्ट करने के बाद हम अपनी फिफ्थ एलईडी लेंगे, उसको भी ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। अगर हो सके आप लोगों से, तो आप जो है इन वायर्स का जंगल ना बनाएं। ठीक है, जितना साफ हो सके, जितना क्लियर हो सकता है उतना क्लियर रखें। ठीक है, अब अपनी सिक्स एलईडी को ऐसे कनेक्ट करेंगे, सेम टू सेम। सबको अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नो सर। ठीक है। All 9 LEDs are connected. ठीक है, आप वेट करें। मेरा हो गए एलईडीज कनेक्टेड, सब यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, अगर हम इन वायर्स के ऊपर अगर क्लिक करें, तो हम इन वायर्स को जो है कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, और अ, हमेशा पॉजिटिव लेग को अगर हम रेड कलर से डोनेट करें तो वो गुड होता है, और हम हमेशा पॉजिटिव लेग को ब्लू रेड कलर से डोनेट ही करते हैं। ठीक है, तो इट्स गुड टू डोनेट योर नेगेटिव और पॉजिटिव लेग विद रेड कलर एंड नेगेटिव लेग विद ब्लैक कलर। आप अगर इन वायर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका कलर ग्रेडियंट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर बटन टू टू भी दबा सकते हैं, तो आपका ये रेड कलर आ जाएगा। सर जरूरी है कि हम लोग वायर की कलर चेंज करें? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम हमेशा रेड वायर्स को पॉजिटिव वायर्स को जो है हम हमेशा रेड कलर से डोनेट करते हैं। ओके। एंड सेम गोज विद द नेगेटिव लेग। हम नेगेटिव लेग को हमेशा जो है वो ब्लैक ब्लैक वायर से डोनेट करते हैं।
डन। यस यस। नहीं, मैं आपको बता रहा था कि मेरा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और काम करने वाले हैं। अगर हम अपनी एलईडीज के ऊपर क्लिक करें तो एक उसके ऊपर एक सिलेक्शन टूल आ रहा हो, सिलेक्शन आ रहा होता है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपनी एलईडीज को मन चाहे कलर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है आप ग्रीन कलर दे सकते हैं, इसको कुछ भी देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पर ग्रीन कलर इस्तेमाल करूंगा और मैं 3 एलईडीज को जो है ग्रीन कलर दूंगा ऐसे। और जो है बीच की जो 3 एलईडीज हैं उनको मैं येलो कलर के तौर पे डोनेट करूंगा। ट्रैफिक लाइट एक टाइप ऑफ सिग्नल बना रहे हैं इधर। और बस, दैट्स इट। सब ये करें और फिर मुझे बताएं। डन। डन। सब पहुंच गए यहाँ पर? एवरीवन इज देयर? एक एलईडी गलत गलत जगह चाहिए, मैं उसको लेके नहीं आ पा रहा हूँ। आप उसको डिलीट करके दोबारा से लगा लें, नया इसको खोल कर नई एलईडी लेकर दोबारा लगा लें। टीचर्स को ले सर इसको लेके नहीं आ पा रहा हूँ मैं। इसके ऊपर क्लिक करें ऐसे करके और फिर इसको ड्रैग करें ऐसे करके। आप किसी और चीज को ड्रैग क्लिक कर रहे होंगे, सेलेक्ट किया हुआ होगा, आप एलईडी के ऊपर क्लिक करें तो देखिए ऐसे एक टूल आता है आपके पास, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी अपनी एलईडी। सब पहुंच गए यहाँ पर? एवरीवन इज हियर? यस। यस। ठीक है, अब हम पे देखते हैं कैथोड लैग। नेगेटिव लैग जो है हम अपनी एलईडीज की जो है उनको कनेक्ट करते हैं पावर पिन नेगेटिव इस पावर रॉ की नेगेटिव रॉ से। ओके, ठीक है। ओके। ऐसे करके जाएं और अगर हम इसको ऐसे क्लिक कर दें और इसको अगर हम ब्लैक कलर से डोनेट करें तो ये बेस्ट होता है, अच्छा रहता है। हमेशा नेगेटिव लैग जो है आपकी ब्लैक कलर से डोनेट होती है। अगर लेट्स सपोज आपको वायर को डिलीट करनी है, ये वायर डिलीट डिलीट करनी, तो आप इसको किसी भी होल इस पे लगाएं, पिन पर। लगाने के बाद इसके ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर बैक बैक स्पेस दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। इज इट क्लियर? ऐसे हमें अपनी सारी एलईडीज को जो है वो कनेक्ट करना है नेगेटिव पिन से, नेगेटिव रॉ से। चार पाँच। जिसका माइक खुला हुआ है वो बंद कर लें। किसी का माइक खुला हुआ है बंद कर ले। सब मेरे साथ है ना? एवरीवन इज विद मी? हेलो? यस। ठीक है। सबने काम वायरिंग का काम कर लिया?
अच्छा, नमाज हो रही है, तो आप सबको जिसको नमाज पढ़नी है आप ब्रेक ले सकते हैं। आप 10 मिनट्स का मैं ब्रेक दे रहा हूँ आपको। आपको 10 मिनट्स के बाद यहाँ पर वापस आना है, क्लास आपकी कंटिन्यू होगी यहीं से। ओके, सबको समझ में आ गया? मैं 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ। ओके सर। 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ नमाज के लिए। ये क्लास यहीं से कंटिन्यू होगी। ओके, थैंक यू सर। Yes.
Everyone is here? Yes. ठीक है. बट 8 पार्टिसिपेंट रहते हैं. 1 2 3 4 5 6 students. जरा थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास पार्टिसिपेंट्स कम हैं. 11 थे. we were 11.
अच्छा। अच्छा, अब हम अपने पोटेंशियोमीटर को जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो हम उसको ब्रेडबोर्ड से, सब इधर हैं, एवरीवन इज हियर। यस। यस। ठीक है, कंटिन्यूइंग। अपने जो है रजिस्टर को जो है कनेक्ट करेंगे। इसकी ग्राउंड पिन को जो है हम लोग ब्रेडबोर्ड की नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, पिन से। ऐसे इसको जो है हम ब्लैक कलर दे देंगे। सेम गोज टू द वीसीसी। हम अपने पोटेंशियोमीटर की जो है सिग्नल पिन को आर्डिनो उनो के एनालॉग A0 पिन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सब इधर हैं। माइक बंद कर लें, म्यूट कर लें। म्यूट योर माइक। लो। सबने पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर लिया। सर आप थोड़ा स्क्रॉल बैक कर लें, नजर नहीं आ रहा। हमारे जो पोटेंशियोमीटर की जो ग्राउंड पिन है, लेग है, वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, और वीसीसी जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और मैं पोटेंशियोमीटर के सिग्नल पिन को एनालॉग पिन A0 से कनेक्ट कर रहा हूँ। सब यहाँ तक पहुँचे तो मुझे बताइएगा। डन। बंदे कितने चेक करें। माइक बंद कर लें, आप म्यूट कर लें अपने माइक। आर यू ऑल डन? यस।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अपने आर्डिनो उनो की 5 वोल्ट पिन को, देख सकते हैं पावर पिन पे जाकर 5 वोल्ट पिन को ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। तुमने कर लिया? तुमने कर लिया? सर चालू आ रही है सर। यस। सर आई थिंक जो आपने 5 वोल्ट और ग्राउंड के पिन है वो शायद गलत लगाई है, ऊपर वाली पार्ट के अंदर लगाना था ब्रेड बोर्ड के। ठीक है, यहाँ पर जो अपनी 5 वोल्ट पिन है वो अपने ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव उससे कनेक्टेड है, और फिर यहाँ पर हमारी ग्राउंड पिन जो है, यहाँ पे हमारे पास 3 पिन होती हैं ग्राउंड पिन ब्रेडबोर्ड पे, अपने आर्डिनो उनो बोर्ड पे। एक, दो नीचे होती हैं, दो दो नीचे होती हैं और एक उधर होती है। तो मैंने जो है अपने ऊपर वाली ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर लिया इससे। और अब आप सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही हैं। अभी मैंने वायर भी नहीं करी, मैं सबका इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ तक पहुँच गए तो फिर मैं आगे मूव करूंगा। सब पहुँच गए? सबने अपना पोटेंशियोमीटर और पावर पिन कनेक्ट यस। कर लिया ब्रेडबोर्ड से? सर डन। सबका हो गया? जी हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है अपने एक और रॉ को अपने अपर रॉ से कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव पिन को लाकर पॉजिटिव रॉ से कनेक्ट कर देंगे। इसको लगा देंगे, तो जो है नेगेटिव रॉ से कनेक्ट कर देंगे अपर नेगेटिव पिन। ठीक है, होल डायग्राम ऊपर सर्किट। डन सर। सबने कर लिया? अभी मैंने जो है जी, यहाँ पे हमने माइनस, यहाँ पे हमने एनोड को ऊपर वाले एनोड से कनेक्ट किया है। कौन सी? ये जो अभी आपने ब्रेडबोर्ड की एनोड को कनेक्ट किया था ऊपर वाले एनोड से, हम्म। वो हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से किया और एनोड को एनोड से किया। ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, देखें, और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये वाली। सही है, ठीक है, समझ आ गई। सर ये सर्किट समझा दें। किट, अच्छा। इधर जो है हमारा आर्डिनो उनो को जो है पावर पिन से 5 वोल्ट पिन से हमने ब्रेडबोर्ड को पावर दी है, और ग्राउंड पिन को हम लोग जो है वो उसकी नेगेटिव रॉ से कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमने 9 LEDs ली हैं, ठीक है, अलग डिफरेंट कलर्स की। उसके बाद उनकी जो पॉजिटिव लेग को जो है रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है, और रजिस्टर की दूसरी लेग जो है हमने आर्डिनो उनो की डिजिटल पिन से कनेक्ट किया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल 10 तक। ठीक है, 9 LEDs ली हैं हमने इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और उनको कनेक्ट करने के बाद उनकी नेगेटिव फ्लैग को जो है हमने नेगेटिव रॉ से कनेक्ट करी है। इसके बाद हमने पोटेंशियोमीटर लिया है, और उसकी जो है पॉजिटिव फ्लैग को हमने वीसीसी जो है पॉजिटिव को कहते हैं, और उसको जो है हमने पॉजिटिव रॉ से कनेक्ट कर लिया, और ग्राउंड पिन को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया। इसके बाद उसकी सिग्नल पिन को जो है हमने आर्डिनो उनो के एनालॉग पिन A0 से कनेक्ट कर दिया, सिग्नल पिन। ये हमारा सर्किट है, सिंपल सर्किट है।
सर ये पोटेंशियोमीटर किस चीज का सिग्नल देता है? ये करंट को जो है पास ऑन, वेरिएबल रेजिस्टर है एक टाइप ऑफ। जी। ठीक है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो उसका रेजिस्टर वो अपने करंट को जो है वो लिटिल बाय लिटिल उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने सर्किट में। जी ठीक है, सर तुम वो तो ये करता होगा ना कि मतलब इनपुट लेके उसको रेस करके थोड़ा मतलब थोड़ा यूज करके और उसके बाद थोड़ा सा और फिर वो रिटर्न कर देता होगा। तो सिग्नल पिन से क्या भेज रहा होता है? सिग्नल पेन से वो जो हम जो कोड उसको कर रहे हैं वो इसमें सेंड होता है ना, ये इनपुट लेता है असल में। ओके ठीक सर। है, डन सर। कर लिया। जी कर लिया। सबको पोटेंशियोमीटर तो क्लियर है ना? सबको पोटेंशियोमीटर क्लियर है? यस। ठीक है यस सर। सबको, ठीक है। अब हम अपने कोड के ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, कोड के ऊपर प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ। First step, we are moving to our initializing step, where we are connecting our potentiometer, defining our potentiometer to our Arduino Uno board, and telling the Arduino board that is connected to the analog pin A0. ठीक है, so and then फर्स्ट आप हम इसको इंटीजर दे देते हैं उधर कोड पे जाके, अपने सिमुलेटर पे जाकर पोटेंशियोमीटर को जो है हम वो दे देते हैं, कनेक्ट करवा देते हैं अपनी A0 पिन के साथ। ठीक है, सब एक इसको उधर कोड में जाके जो है इसको पोटेंशियोमीटर को करवाएं एनालॉग पिन से कनेक्ट, A0 से। सब पहुंच गए, सबने ये कर लिया ना? यस। यस। उसके बाद हम लोग जो है इंटीजर दे रहे हैं नंबर ऑफ एलईडीज को, कि हाउ मेनी एलईडीज वी आर यूजिंग। इन दिस केस हम 9 एलईडीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग 9 जब लिख देते हैं एलईडी काउंट इक्वल्स टू 9। वी आर नेमिंग अ वेरिएबल एलईडी काउंट एंड, और डेटा टाइप जो है इसकी इंटीजर है, इसका मतलब कि हम उसमें जो है न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा स्टोर करवा रहे हैं और वो 9 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है अपनी सारी एलईडीज को जो है इंटीजर दे रहे हैं, और ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसको हम एरे कहते हैं, जिसमें जो है मैं चाहता तो इन्हें एक एक करके भी डिफाइन कर सकता था अपनी एलईडीज को, लेकिन हम सब मैंने शॉर्ट वेस्ट ऑफ टाइम होता वो, क्योंकि तो मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया, और उसमें जो है मैंने एलईडीज नाम का एक वेरिएबल वेरिएबल लिया, उसको इंटीजर डेटा टाइप दी कि वो उसमें जो है एक न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एरे के फंक्शन दिखाता है, ये एरे का फंक्शन है जिसमें जो है हम सारी एलईडीज की एक टाइप ऑफ लिस्ट आपकी स्टोर होती है इधर। तो मैंने सारी एलईडीज को एक लिस्ट के फॉर्म में इसको इंटीजर दे दिया। सबको ये क्लियर है? एरे ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है।
सबको एरे समझ में आया? आप दोबारा समझा दें, समझ नहीं आया। अच्छा, एरे एरे जो है ऐसा टाइप ऑफ फंक्शन है, एक लिस्ट है जिसमें जो है हम बहुत सारे उसको अपने डेटा को स्टोर करा देते हैं उसमें लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। जी। एक टाइप ऑफ लिस्ट है, उसमें जो है हमने इसको इंटीजर दिया कि उसमें जो है वो हम न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा स्टोर करवा रहे हैं, और ये ऐसे हमारा एरे काम करता है। ओके, ठीक है। अच्छा, एरे में जो है हमारा लिस्ट कुछ ऐसे काम करती है। जब ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जीरो नंबर होता है, तो जब जीरो नंबर होता है तो इसका मतलब वो रेफर कर रहा होता है टू को, इस फर्स्ट नंबर को, ये भी टू को रेफर कर रहा है इधर, ये टू को डिफाइन कर रहा है, देखें आप देख सकते हैं इधर। जब एलईडी जीरो है तो ये इंडेक्स, इसकी इंडेक्सिंग ऐसे कुछ काम करती है एरे की। जब ये एलईडी वन होगी तो ये इसको एलईडी नंबर थ्री, जो पिन नंबर थ्री से कनेक्टेड है उसको रेफर कर रही होगी। जब एलईडी नंबर टू होगी तो ये फोर को रेफर कर रही होगी। जैसे कि इधर इधर वन आया, इधर आपने इधर पहले जीरो था तो ये जो है टू को रेफर किया। जब इसको मिटा के इधर ये और जब मैंने यहाँ पे टू कर दिया, यहाँ पे टू आ गया, तो ये जो है फोर को रेफर कर रहा है, ये फोर को रेफर कर रहा है इधर। सबको समझ में आया एरे कैसे काम करता है? ये इसकी इंडेक्सिंग है। दिस इज हाउ एन एरे वर्क्स। जी, समझ आ गया। ठीक है। जब यहाँ पर जब यहाँ पर थ्री होगा तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर किसको रेफर कर रहा होगा ये, आप बताएं, कोई बता सकता है? एनीवन? यस सर। किसको रेफर कर रहा होगा ये? सर किसको? जब इधर अपने एरे में थ्री नंबर इधर जब होगा, इधर थ्री लिखा होगा, तो ये किस किस उसको पिन को रेफर कर रहा होगा? सर ये पिन नंबर 2 को कर रहा होगा। पिन नंबर फाइव को करेगा, ये पिन नंबर फाइव को करेगा। ठीक है। ये ये जीरोथ प्लेस पे ये वन, ये टू, थ्री, फोर, दिस इज फाइव, सो ऑन टिल नाइन, सेवन, एट, एट तक जा रहा है ये। ओके, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। सबको इंडेक्सिंग समझ में आ गई? यस। अच्छा, अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर इस इधर नंबर जो है अगर फोर है तो वो किसको रेफर कर रहा होगा, किस पिन को तो रेफर कर फिर रहा वो होगा? टू को रेफर 6। कर रहा होगा। किसको? पिन टू नंबर को। 6। फोर को देखें, इधर सिक्स को कर रहा होगा, देखें इधर फोर नंबर है। अपना जो इंडेक्स है वो जीरो, वन, टू,
फोर्थ नंबर पे जो है वो सिक्स सिक्स वाला पेन है। तो ये एलईडी जो एलईडी सिक्स पिन पे लगी हुई है ये उसको रेफर कर रहा है। ठीक है, ठीक है। यस। ओके। यस सर। देखें, ठीक है, यहाँ पर जो है जो पिन जो मेरी एलईडी जो पिन नंबर 4 से कनेक्टेड है अभी ये इसको रेफर कर रहा होगा। ठीक है, जो पिन नंबर 6 से लगी हुई है ऐसे चलता रहेगा। जब जीरो जीरो नंबर पे होगा तो वो जो अपनी टू एलईडी जो कनेक्टेड है उसको रेफर कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है जी। हाउ एन एरे वर्क्स और उसकी इंडेक्सिंग, एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, अब हम ये सारा कोड जो है उधर लिखेंगे अपने सॉफ्टवेयर पर। तो सब ये लिख लें मेरे साथ साथ। ठीक है, ठीक है, सब आगे बढ़े, आगे बढ़े यस। जी। अच्छा, ये जो मैं आपको डबल स्लैश इस्तेमाल कर रहा हूँ ये जो है कमेंट्स के लिए होता है। तो इसे जो है आर्डिनो रीड नहीं करता। ठीक है, तो मैं कमेंट्स की तरफ हेल्प लगा रहा हूँ जस्ट टू हेल्प। सब यहाँ तक पहुँच गए? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम वाइड सेटअप के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, सब ये यहाँ कर लें, फिर मेरे साथ पहुंचे। सबने यहाँ तक कर लिया ना? एवरीवन इज हियर? यस। ठीक। Moving on to set up our void setup function, we are using a special type of command, for loop, which is an repetitive function. It uses the statement, it repeats the statement again and again, again, again. Okay. यस। हमारी जो स्टेटमेंट है उसको ये बार बार रिपीट करता है जब तक वो ट्रू है उसको रन करता रहता है। जब वो फॉल्स हो जाएगी तो जो है वो एंड हो जाएगी अपना फॉर लूप। यहाँ पर जो है हमने एज आई को इंटीजर दिया
और उसको जो है आई को हम इधर काउंटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको हमने इनिशियली 0 की वैल्यू दी। ठीक है, इसके बाद हमने आई को लेस देन एलईडी काउंट किया, जो कि इन दिस केस एलईडी काउंट जो है वो हमने ऊपर 9 दिया हुआ है, तो वो 9 है इधर। ठीक है, एलईडी काउंट की वैल्यू उधर 9 है। इसके बाद हम आई को जो है वो इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, आई को +1 करवा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा फॉर लूप स्टार्ट होता है, जहाँ पर जो है आई की वैल्यू 0 है। यहाँ पर जो है अपना फॉर लूप इधर इधर अपना स्टार्ट नहीं होता, हमारा फॉर लूप यहाँ से नेक्स्ट स्टेटमेंट से बिगिन होता है। अब आई जो है वो लेस देन 9 है। यस, आई जो है अभी तो हमारा आई 0 है, तो यस इट इज लेस देन 9। अगर जब वो लेस देन 9 हुआ तो वो नेक्स्ट कंडीशन पे आया, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया, जो कि है उसने पिन मोड हमने कमांड दिया हुआ है, और उसके बाद जो है हमने एलईडीज का एरे फंक्शन इस्तेमाल किया दोबारा से, और अगर आई की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब जो 0 पिन पे जो हमारी एलईडी लगी हुई जो कि 2 है, जो पिन नंबर 2 से जो हमारी एलईडी लगी हुई डिजिटल पिन पे, वो एज एन आउटपुट डिफाइन हो गई। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको समझ में आया फॉर लूप? यस जी। सर। यस ठीक सर। है, अब हम इस कंडीशन के बाद जो है हमारी जो है वो आई जो है वो 1 + 1 हो जाएगा। अब वो जो है 0 की जगह 1 हो जाएगा। अब ये कंडीशन दोबारा रन करेगी, जब रन करेगी तो उसके आई की वैल्यू इधर अभी 1 है, तो यस इट इज लेस देन 9। इट इज लेस देन 9, तो फिर हमारी कंडीशन दोबारा रन होगी और पिन मोड पर आएगी। फिर पिन मोड पर जो है इधर इधर जो है हमारे एरे में अब आई की वैल्यू जो है वो 1 है। 1 है, तो हम इंडेक्स इंडेक्स में 1 कौन सी एलईडी होगी? हमारी पिन नंबर 3 पे होगी, है ना? पिन नंबर 3 होगी वो। यस सर। ठीक है, तो हमने उसको भी एज एन आउटपुट डिफाइन कर दिया, उसका पिन मोड डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हमारी कंडीशन फिर दोबारा फिर जो है हमारा आई जो है वो +1 हो जाएगा। फिर ये हमारी कंडीशन दोबारा रन करेगी अनटिल अनलेस, जब तक हमारा आई जो है वो लेस देन 9 नहीं हो जाता। जब हमारा आई जो है वो लेस देन 9 नहीं है, तो वो कंडीशन जो है फॉल्स हो रही है, तो वहाँ पे उधर हमारा फॉर लूप जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये वाली जो हमारा फॉर लूप का जो फंक्शन है, कमांड जो है ये जो है रिपीट करता रहेगा जब तक हमारी आई की वैल्यू जो है वो 8 तक नहीं आ जाती। जब हमारी आई की वैल्यू 8 तक आ जाएगी, तो वो जो है 8 तक आएगी, तो हमारी जो है वो कंडीशन रन करेगी। उसके बाद 0 से लेके 8 तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारा जो है ये वाली पिन मोड सारी एलईडीज हमारी एज एन आउटपुट डिफाइन हो जाएंगी। इसके बाद जब हमारा आई जो है वो इंक्रीमेंट होकर 9 पर आएगा, तो क्या होगा कि इट इज 9 पर आ गया, तो 9 जो है वो लेस देन 9 तो नहीं होता, तो हमारी कंडीशन जो है इधर फॉल्स हो रही है। तो अब ये इस इधर जाने के जगह इस जगह जाएगा, एंड एंड के तौर पे ये एंड हो जाएगा कंडीशन, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। जो हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये एंड एंड हो जाएगी हमारा अपना फॉर लूप, हमारा फॉर लूप एंड हो जाएगा यहाँ पर। सबको क्लियर है? यस। यस सर। ये वाला कोड जो है उधर लिखते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर।
सबको अभी तक ये कोड क्लियर है? सबको ये कोड क्लियर है अभी तक? यस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? सबको एरे फंक्शन, एरे डेटा टाइप स्ट्रक्चर समझ में आ गया? हेलो, सबको एरे डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया? यस जी सर। आ गया। ठीक है, और उसकी इंडेक्सिंग भी आ गई होगी आई होप। जी। और फॉर लूप, सबको फॉर लूप क्लियर है ना? और लोग भी समझ आ गए। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन वाइड लूप के ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, जरा मुझे थोड़ा सा टाइम दें, 1 मिनट दें। ठीक है, hang on, वाइड लूप। हम यहाँ तक पहुंचे। जी पहुंच गए। है, here we are naming a variable sensor reading। हम एक सेंसर रीडिंग नाम के वेरिएबल को ले रहे हैं, आर्डिनो को डिफाइन कर रहे हैं, और उसमें जो है उसको इंटीजर दे रहे हैं कि उसमें जो है डेटा टाइप जो स्टोर होगा वो इंटीजर न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। ठीक है, और फिर हम उसके बाद इज इक्वल्स टू एनालॉग रीड। हम जो वैल्यू जो हमें पोटेंशियोमीटर से रीड हो रही है, हम पोटेंशियोमीटर को एज एन इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम रीड करवा रहे हैं। इससे वैल्यू जो हमें हमें उससे लेनी है पोटेंशियोमीटर से, उसको रीड करवाने के बाद हम लोग जो है सबको ये समझ में आया सेंसर रीडिंग वाला, ये वाली स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सबको समझ में आई? हेलो, एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, नो सर। हम अपने नेक्स्ट उसके ऊपर मूव करें। तो हम जो है यहाँ पर हम व्हाट वी हैव डन कि हमने एक और वेरिएबल लिया एलईडी लेवल नाम से। ठीक है, और उस एलईडी लेवल को हमने इंटीजर के डेटा टाइप उसकी इंटीजर ली। उसमें जो है न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, नंबर्स की फॉर्म में डेटा फॉर्म होगा। फिर हमने जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ कमांड इस्तेमाल किया, मैप का फंक्शन। मैप को जो है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ इस स्लाइड में। दिस इज हाउ अ मैप फंक्शन वर्क्स। ठीक है, ये मैप फंक्शन की वर्किंग है, हाउ इट विल वर्क। तो सिंटेक्स में हमारे मैथ में जो है हमारे जो ब्रैकेट के बाद जो पहली वैल्यू वो होती है वो वैल्यू होती है, हम क्या वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो क्लियर है ये? ठीक है, यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी। सही है? लो अपना माइक। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमें वैल्यू मिल रही है उसमें से जो लोवेस्ट वैल्यू है उस वो लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो हमें हाईएस्ट वैल्यू जो है हमारी, हम वो लेंगे, वो लिखते हैं, लेंगे इधर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में जो है हम लोग पोटेंशियोमीटर से जो हमारी वैल्यू आ रही है वो जो है 0 to 5 वोल्ट्स के बिटवीन है, इन बिटवीन है। ठीक है, और वो वैल्यू वो जो सारी रीडिंग्स हैं उससे जो है हमारा आर्डिनो रीड नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई आवर आर्डिनो हैज अ बिल्ट इन एडीसी, एडीसी विच इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है जो कि हमारे करंट को जो है वो डिजिटल उसमें कन्वर्ट कर देता है, और हमारी वैल्यूज जो है फिर हमारी रीडिंग जो है वो 0 to 1023 हो जाती है, जिससे जो है हमारा आर्डिनो रीड कर सकता है। ठीक है, जब हमारा आर्डिनो से रीड करता है तो फिर अब इसमें बताया मुझे लोवेस्ट वैल्यू इसमें से कौन सी है, इसमें से लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है विच वी कैन गेट। लो, हेलो, यस सर।
इधर हमारी लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? 1023 और जीरो के उसमें जीरो, जीरो, जीरो। जीरो, यस जीरो। जीरो हमारी लोवेस्ट वैल्यू, और इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सी है? 1023। 1023, गुड। 1023 है हमारी। ठीक है। मैप फंक्शन जो है वो हमारी एक वैल्यूज को जो है स्केल करता है और उसको कन्वर्ट कराता है इन विच वी नीड। ठीक है, उस रेंज होती है, उस रेंज को जो है वो कन्वर्ट करा के उस स्केल में लाता है, ताकि वो हमारा आर्डिनो उसको कोड कर सके। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब कन्वर्ट करवाने के बाद हम इसको चाहते हैं कि अब हम अपनी एलईडीज को, 9 एलईडीज जो हमने लगाई हैं, हम उसको चाहते हैं कि वो लाइट अप हो। तो हमारी लोवेस्ट एलईडी नंबर कौन सा है? जीरो, जीरो। ठीक है, तो जीरो। और यहाँ पर हाईएस्ट एलईडी नंबर जो है वो हमारा 9 है। ठीक है, वी आर एलईडी काउंट इज इक्वल्स टू 9। हमने इसको डिफाइन किया है पहले से ऑलरेडी। ये हमारा 9 है, ये हाईएस्ट वैल्यू या फिर एलईडी काउंट। यस सर। सबको मैप फंक्शन इस्तेमाल आया? मैप फंक्शन में जो है आप लोग, करंट ऐसे चीज होता है जैसे कि अभी मेरा करंट, लेट सपोज, के 5 वोल्ट्स है। ठीक है, मैं 5 वोल्ट्स को अगर मल्टीप्लाई बाय 1024 करूं तो we will get the value of 5120। ठीक है, फिर हम इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, जो कि हमारा रेफरेंस वोल्टेज है। ठीक है, जब हम 5 को डिवाइड बाय 5 करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो 1024 पे आएगी। ये इसको एडीसी का इसको एनालॉग करंट को डिजिटल करंट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है ये। सबको मैप फंक्शन समझ में आया? मैप फंक्शन यस। समझ में आया? सब यस। सबको क्लियर है ना? यहाँ पे जो है हमारी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, उस वैल्यू को लेने के बाद हम उसकी लोवेस्ट वैल्यू और उसको स्केल कर रहे हैं। एक्चुअली मैपिंग का जो फंक्शन है वो स्केल कर रहा है उसको। ठीक है, the values which we are getting, the map function is mapping the value, scaling the values which we are getting and converting them to the values which we want। ठीक है, सबको क्लियर है ना? यस सर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम दोबारा से फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, और फॉर लूप में जो है हमने दोबारा से आई को एज एन इंटीजर दिया, और आई जो है यहाँ पर एज ए काउंटर इस्तेमाल कर वर्क कर रहा है, और हमने इनिशियली इसको 0 दिया। उसके बाद जो है हम आई को लेस देन, इफ आई इज लेस देन 9,
तो फिर क्या होगा कि हमारी कंडीशन रन होगी, और कंडीशन रन होने के बाद जब हमारी कंडीशन बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होगी, तो हमारी फिर क्या होगा कि हमारी कंडीशन फॉल्स, जैसे यहाँ पर फॉल्स हुई, तो फिर हमारी कंडीशन दोबारा एंड हो जाएगी, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया प्रीवियसली। हमारा आई जो है वो जीरो टू जीरो है। यस इट इज लेस देन 9, अभी आई की वैल्यू जीरो है, तो यस इट इज लेस देन 9। लेस देन 9 है, फिर हम क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग अ कमांड, और फिर उसके बाद हम डिजिटल राइट कर कमांड इस्तेमाल करते हैं, और सारी फिर अपनी एलईडीज की जो फिर वन 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 बाय वन जो है अपनी एलईडीज के जो है उसको हाई करवा रहे हैं हम लोग। और फिर इसके बाद जो है हमारा आई जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, आई+1 हुए हैं। ठीक है, फिर हमारी कंडीशन दोबारा रन करती है। समझ में आया सबको? यस सर। फॉर लूप का, इसके बाद जो है हम फॉर लूप का हमारा ब्रैकेट खुलता है, और ब्रैकेट खुलने के बाद हम इफ कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। इफ कंडीशन में हम बता रहे हैं कि आई जो है वो, अगर आई की वैल्यू जो है वो लेस देन जो है वो एलईडी लेवल जो है तो फिर हमारा डिजिटल राइट करके वी आर राइटिंग अ कमांड, और उसमें जो है हम बता रहे हैं कि अपनी एलईडी जो है वो हाई हो जाए। इफ नॉट, अगर ऐसा ना नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा कि हमारी एलईडी जो है वो लो करवा दे। राइट, देन अगेन वी आर यूजिंग द एल्स कमांड, और उसके बाद हम राइट डिजिटल राइट का कमांड इस्तेमाल करके एलईडीज को लो करवा रहे हैं। समझ में आ गया? एनी डाउट्स? हेलो, एनी डाउट्स? नो नो सर। सर। ठीक है। सर सर ये समझ आ गया। हम अब हम इस पूरे उसको कोड को हम वहां पर सॉफ्टवेयर पे लिखते हैं साथ। सब यहाँ तक पहुंच गए? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग फॉर लूप का कमांड इस्तेमाल करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ कुछ समझना चाहते हो कोई? नो सर। वो सब, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। सर मुझे एक चीज पूछनी है। जी। यहाँ लाइन नंबर 14 में आपने लिखा है सेंसर रीडिंग 0 1023, यहाँ पे 1024 नहीं आएगा? नहीं, असल में हम लोग यहाँ पे जीरो के बाद से जो नंबर काउंट होता है वो उसे हम काउंट कर रहे हैं, 0 1023, इसलिए हमारी वैल्यू जो है 1023 पे आ रही है, हम ले रहे हैं उसमें से। ओ ओके ठीक है। ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पर जो है एलईडीज को हाई करवा रहे हैं। तो कोड हो गया? नो सर, 1 मिनट।
सर डन। सबने कर लिया? यस सर। ठीक है। अब अगर हम इसको अपने सिमुलेटर को स्टार्ट करें, देखें वी आर हैविंग एन एरर, एरर लिख रहा है, तो ठीक करते हैं। ठीक है, ये देखें हाउ इट इज वर्किंग, कि जब मैंने अपने पोटेंशियोमीटर को उसके उसको 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 किया, तो देखेंगे नहीं एलईडीज इन सीक्वेंस ऑन हो रही है। ठीक है, आपने देखा? आप अपने कोड को दिखाएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी के कोई कोड में कोई एरर हो, किसी के कोड में कोई एरर? सर वर्क कर रहा है। सबका वर्क कर रहे हैं ना? यस सर। आप देख सकते हैं कि कैसे ये इन सीक्वेंस अपनी सारी एलईडीज जो है वो टर्न ऑन होती हैं। ठीक है, सबका क्लियर है? यस सर। नाहिल, मकशूफ, आमना, अ, एक दफा फिर से बता दें। क्या? स्टार्ट का। अगर हम यहाँ पर जो है अपने सिमुलेटर को जो है ऑन करें, और उसके बाद जो है हम अपने रजिस्टर को इस पोटेंशियोमीटर के इसको वेट करें, तो देखें आप कैसे हमारा सारी एलईडीज वन बाय वन इन सीक्वेंस ऑन हो रही हैं। हो गया? किसी का कोई एरर? ओ सर नोट एनी एरर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मरियम, अहिल, सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, हमारी क्लास जो है यहाँ पर एंड होती है, लेकिन उससे जाने से पहले आप अभी अभी मीटिंग लीव ना करें, आप उससे पहले मेरा फीडबैक फॉर्म जो है फिल कर दें क्लास में रहकर। सर विच फॉर्म? फीडबैक फॉर्म, फीडबैक फॉर्म। ओके सर।
सर फीडबैक फॉर्म कहाँ से फिल करना है मैं? सॉरी, मैं फीडबैक फॉर्म अभी सेंड करूंगा, अभी मैं सेंड कर रहा हूँ। ओके, आपको यहीं पे ओके फिल सर। करना है। अच्छा, मैं फीडबैक फॉर्म जो हूँ अभी सेंड करूंगा ग्रुप पर। आपको जो है वो फिल फिल करना है फॉर्म को। ठीक है, किसी का कोई एरर? सब क्लियर है? सब क्लियर है ना? यस सर, जब सब Yes. क्लियर यस है। सर। ठीक है, आप लोग अब आप लीव कर सकते हैं क्लास को। थैंक यू। आई विल बी कंडक्टिंग अनदर वर्कशॉप। ठीक है, जब मैं वर्कशॉप कंडक्ट करूंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आप सब इसी ग्रुप में रहिएगा, इस ग्रुप को लीव मत करिएगा। ठीक है। Okay, thank you. Allah Hafiz. यू कैन लीव। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।